نیب ملتان نے 48 ارب روپے کے فراڈ میں ملوث ملک عبدالحی کو کراچی سے گرفتار کر لیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی ہے۔ نیب نے ملزم کی 7 جائیدادیں بھی فریز کر دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نیب ملتان نے 48 ارب روپے کے فراڈ میں ملوث ملک عبدالحی کو کراچی سے گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی نشاندہی پر یہ کارروائی کی گئی۔ نیب نے ملزم کی 7 جائیدادیں بھی فریز کر دی۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے ماہر عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو سکینڈل ہے لیا کے ہیں عبدالحی، ان کو 48 ارب روپے کے مبینہ فراڈ کے الزام میں نیب نے ریفرنس بنایا تھا اور اس میں اس کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے عدالت سے اس کا جو ریمانڈ ہے وہ حاصل کیا گیا ہے۔ اگر بات کریں تو یہ عبدالحی کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی نشاندہی پر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے جو آن لائن جو کاروبار کی مد میں جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے فراڈ کیا اور 191 شکایات مختلف جو ہے وہ نیب ملتان کو جو موصول ہوئی تھی، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عبدالحی جو ہے وہ لیا کے اسپتال میں خاص روگ تھے اور شام کو دودھ گرو کرنے کا کام کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 4H ٹریڈرز اور AH ایکسپرٹس کے نام سے جو ہے کمپنیاں بنائی تھی، جن میں وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈنگ کی آڑ میں وہ سادہ لوگ جو انویسٹرز ہیں ان کو 30% منافع کا لالچ دے کر وہ لوٹتا تھا۔ اور اس حوالے سے جو ہے 14 اکتوبر کو ملزم کو اب احتساب عدالت میں دوبارہ پیش بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک تو جو نیب نے ان کی 7 جائیدادوں کو جو ہے وہ فریز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر انکشافات میں سامنے آیا ہے کہ پہلے NCCIA نے جو ہے اس کو اریسٹ کیا تھا اور اریسٹ کے طور پر اس کو برگی نہیں ڈالی گئی تھی اور اس پہ 6 کروڑ روپے رشوت لے کر انکوائری جو ہے وہ بند کی گئی تھی۔ یہ نیب ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اس نے DPO لیا کے خلاف بھی سیکیورٹی کی مد میں اس نے 1 سال مستقل طور پر اس کو سیکیورٹی گارڈ پولیس کی جانب سے باقاعدہ دیے گئے تھے اور 8 کروڑ روپے اس میں DPO کو فراہم دیے تھے۔ مبینہ طور پر یہ بھی ایک الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس میں 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کسی سیاسی خاتون کو دے کر ٹکٹ حاصل کرنے کی بھی کوشش تھی۔ یہ تمام باتیں اب نیب کی تفتیش میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تاہم جو اس وقت تک 191 شکایات ہیں، جس کی بنیاد پر نیب نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو کراچی سے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ اور مجموعی طور پر بات کریں تو جو فراڈ کی 148 بلکہ 48 ارب روپے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ مزید جو ان کے حقائق ہیں، مزید جو تحقیقات ہیں وہ 14 اکتوبر کو عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت وہ نیب کی حراست میں ہے اور نیب جو ہے مزید تحقیقات عبدالحی کے حوالے سے کر رہی ہے۔ جی ماہر عمران، بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے رب آپ کو بتائیں، ملتان میں NCCIA کی کارروائی، آن لائن فراڈ میں ملوث گینگ کے 3 اہم ارکان گرفتار، سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان NCCIA کے مطابق ڈیجیٹل ڈیوائسز سے جعلی ویب سائٹس اور رقوم کی وصولی کے ثبوت برآمد۔ گرفتار ملزمان سے 1 لیپ ٹاپ اور 3 موبائل فون بھی برآمد۔ ملزمان کی جانب سے آرڈر کی ادائیگی کے بعد ڈیلیوری نہیں کی جاتی تھی۔ ملزمان آن لائن سٹورز کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی صارفین کو نشانہ بناتے تھے۔ آن لائن اسکیمنگ کا یہ گینگ خانیوال پیپلز کالونی سے مبینہ طور پر کام کر رہا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں NCCIA کی کارروائی ہوئی ہے۔ آن لائن فراڈ میں ملوث گینگ کے 3 اہم ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ترجمان NCCIA کے مطابق ڈیجیٹل ڈیوائسز سے جعلی ویب سائٹس اور رقوم کی وصولی کے ثبوت برآمد ہوئے۔ گرفتار ملزمان سے 1 لیپ ٹاپ اور 3 موبائل فون بھی برآمد کیے گئے۔ عبدالحکیم میں آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو آٹے کی پیکنگ بند کر دی گئی ہے، جبکہ آٹے کی قیمت میں 60 روپے فی کلو سے بڑھ کر 110 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عبدالحکیم میں آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو آٹے کی پیکنگ بند کر دی گئی، جبکہ آٹے کی قیمت 60 روپے فی کلو سے بڑھ کر 110 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آصف خان نیازی، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں اس ٹائم عبدالحکیم میں آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ شہری 2 روٹی کے لیے پریشان ہیں۔
सर ये हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे। जी सर ये बताइए, आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 910 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 15 ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 10 ਕਿਲੋ और 20 किलो आटा मार्केट मुहैया किया जाए। जी इनका कहना था कि 10 किलो और 20 किलो की पैकिंग बंद कर दी गई है और जो 15 किलो वाली पैकिंग आटे की सेल हो रही है उसका रेट 110 रुपए है। जी आसिफ खान न्यासी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, रहीम यार खान में सिंध की बचाने वाली अद्वियात बन गई ख्वाब। ढूंढने से भी नहीं मिलती, मिल जाए तो कीमत ऐसी जेब भी हार मान जाए। इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, आई ड्रिप्स, सब की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। आसिम बताएगा। बाहर होना और फिर सेहतयाबी हासिल करना एक मुश्किल काम हो गया, क्योंकि अद्वियात की कीमत किसी तरफ कंट्रोल ही नहीं हो रही। जब आते हैं दवाई खरीदने के लिए तो एक और रेट होता है, जब जाते हैं तो फिर और रेट होता है। ये सूरत हाल है। इंसुलिन जो शुगर के मरीजों के लिए मुसलसल इस्तेमाल होती है, उनकी ज़िंदगी की हैसियत रखता है, वो शॉर्टेज है, उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा दिल, ब्लड प्रेशर, आई ड्रॉप, कौन सी अद्वियात है जो सस्ती हो रही हैं, तमाम अद्वियात महंगी होती जा रही हैं। आप लोगों के पास लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए तो क्या कहते हैं, कौन कौन सी अद्वियात महंगी हो चुकी? सर जी पहले तो सबसे मसला है ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट इतने परेशान है ना, जब भी आते हैं जो 800 वाली इंसुलिन थी पहले तो वो शार्टेज है, 6 माह से बिल्कुल मिल नहीं रही। अब आइए तो वो 1630 रुपए की होगी और लोगों के पास इतनी पावर ऑफ परचेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो 280 रुपए की डब्बी थी अब वही 480 में, वो भी मिलने को भी कासिर हैं और लोग आते हैं परेशान होते हैं। दवाई कोई परचेज़ करने से बेशक परेशान इतने हैं कि हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जब वहाँ पे आते हैं लेने के लिए, उनके पास डॉक्टर की फीस के पैसे होते, दवाई लेने के लिए पैसे होते ही नहीं हैं। दवाई लेने के लिए? हाँ जी। तो क्या कौन सी दवाई लेने के लिए? की दवाई और ये विटामिन वगैरह ये सब महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी की पहुँच ही दूर है। बाद टाइम तो हम वापस चले जाते हैं, लेते ही नहीं शाह साहब से दवाई, जब होंगे पैसे फिर लेंगे, खरीद करेंगे। आप बाबा जी आप भी दवाई लेने? हाँ जी, हाँ मैं दवाई लेने आया हूँ। मैं बड़े सर की या शुगर की हमारे इतनी दवाई महंगी हो गई है कि गरीब आदमी ले नहीं सकता। एक गोली जौन सी है 50 रुपए की गोली हो गई है, समझे? कहाँ से गरीब आदमी लाएगा? मैं कोई दिहाड़ीदार हूँ, कहाँ से बच्चों को पालूंगा या इसको दवाई के पीछे जाऊँगा? साड़ी मजबूरी है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिल्कुल, ये देखें, यही तकलीफ है जब बीमार आदमी होता है, घर में कोई फर्द बीमार हो जाए, खुद हो जाए, तो अद्वियात इतनी महंगी होंगी, पहुंच से बाहर हैं, कुछ शॉर्टेज है। मियांवाली के नवाही इलाका ढंगाना के करीब दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियाए सिंध का पानी शेरशाह सूरी रोड से तकरीबन 20 फीट के फासले पर है। मकीनों का कहना है कि कटाव रुकने के इकदाम ना किए गए तो शेरशाह सूरी रोड भी दरिया बुर्द हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध के कटाव ने ढिकाना के मकाम पर यहाँ के मकीनों को नकल मकानी पे मजबूर कर दिया। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। क्या अक्सो दरिया ढाल आई खलो, क्या अक्सो? जी दरिया ढाल आई खड़ा है, काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 1 साल अरसा थी कि बार बार महकमा इरीगेशन वाला नाक है सरगोदे चुआए ने, महकमा इरीगेशन का चीफ आया ने, लाहौर ही चुआया, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं थिया। थोड़े सामने सूरत हाल है, कुछ फुट रह गए अगे तो कुछ हाई फरनांगा था, लेकिन हुण फुट ही ये मुश्किल हफ्ता है 2 दिन इन, इस तो बाद शेरशाह सूरी रोड तक जड़ा है डैव है, इस तो इलावा सारा तकरीबन 2 किलोमीटर शहर आई जड़ा इस पासों देहात है। हर कहते अपनी आबादी के घर आन, मिसाल तौर पर मेरा घर है तो मेरी अपनी आबादी से थोड़े थोड़े फासले से जड़े वो दरिया बुर्ज हो गए। हुण ये दरिया जड़ा है जमीन के इलावा सारे सड़क नहीं खड़ेंदे तो सारे शहर नूं जड़ा है दरिया बुर्ज करेंदे। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगी। और यहाँ पे जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका चाह हैदरवाला में बेवा खातून भी सैलाब से मुतासिर। घर के तमाम कमरे, 4 दीवारें टूट गई, कीमती सामान भी पानी के नजर हो गया। इमदाद की मुंतजिर सैलाब मुतासरा खातून की हुकूमत से जल्द अज जल्द सर्वे मुकम्मल करने की अपील। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास सदीकी से। देखिए ये वही बदनसीब तहसील है जिसको सैलाब ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। 75 से ज़ायद जो अब मुआवजात हैं वो चुनाब उठ के
मुआवजात से जो है मजमूई तौर पर वो मुतासर हुए हैं। इस वक्त बहादुरपुर की बस्ती शाह हैदरवाला में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने बेवा खातून और उसके बच्चों का घर भी जो है वो छीन लिया है। खातून हमारे साथ, इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या बताते हैं। हमारी कि गुजारा थी ना बेदोरा असवा गुजारा जरा आइदा वालो चलिया के माल जरे आइदा हो गए पिया को लोड के माल सिलाब आइदा बस हुन घर को बेघर थी गए से मैं बेवा मेरा बच्चा भी है के कमावा लेके है नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त देते शुक्र है। बाकी या इमदाद सा न करो सारे ये मकान सर्वे टीम में थोड़े गुण कहनी है ये नहीं ना सारे को कोई शय कहनी कोई चीज भी कहना ना कि राशन पानी कोई चीज भी कहनी सारे को। जी, बेवा खातून के रिश्तेदार हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी क्या जी, हमारे मुतालबा यही है कि हमें जल्द अज जल्द जो है ना हमारे रास्ते बहाल किए जाए और हमें तावन किया जाए और जो वादे मरीम नवाज ने किए थे हमारे साथ वो वादे पूरे किए जाए। जी बिल्कुल, वादों की जो पासदारी है, जो वादे निभाने का जो वक्त है वो इस वक्त आ चुका है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है जो सर्वे टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बेट भुट्टो का गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सैलाबी पानी की जद में आने से खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। चादर चारदीवारी मुकम्मल तबाह, इमारत को ताले लग गए। सैलाब गुजर जाने के बावजूद ताहाल स्कूल फाल न हो सका। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। जी बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाकों में जहां दरियाए चनाब के सैलाब ने लोगों के घरों, फसलों और जमा पूंजी को मिलियामेट कर दिया है और अपने साथ बहा कर ले गया है, वहीं पर सरकारी इमलाक भी सैलाबी पानी से महफूज नहीं रह सकी। इस वक्त मैं मौजा बेट भुट्टू के गवर्नमेंट गर्ल्स इंसाफ आफ्टरनून एलिमेंट्री स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है और सरकारी स्कूल की जो दीवार है वो बिखरी हुई, उसकी ईंटें जो है सैलाब की बेरहम लहरों की दास्तानें बयां कर रही हैं। ताहाल भी इस स्कूल को ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर तदरीसी निजाम जो है बहाल नहीं हो सका। सैलाब तो खत्म हो गया है मगर इलाका मकीनों की और मुतासरीन की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। जो बेट भुट्टो के तालिब इल्म हैं, खास तौर पे देहाती इलाकों की जो बच्चियां हैं जो इस स्कूल में आकर जेवर तालीम से आरास्ता होती थी, जैसे ही सैलाब आया जहां लोगों के घर, जमा पूंजी और उनके ख्वाब छिन गए, तो वहीं पर इन बच्चियों का जो सुहाना ख्वाब इल्म की शम्मा थी वो भी बुझ गई, जो ताहाल जो है रोशन नहीं हो सकी। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल को ताहाल ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर ना तो कोई स्टाफ पहुंचा है, ना इंतजामिया पहुंची है कि इस स्कूल को जो है बहाल किया जाए। हर तरफ ये तबाही के मनाजिर बयान कर रहा है और सैलाब की जुल्म की दास्तानें बयां कर रहा है। ये स्कूल मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर स्टाफ को जो है हथेजी में सतलुज के पानी में फिर इजाफा, किसान परेशानी का शिकार। मुतासर किसानों का कहना है कि पिछले सैलाब से ही मकानात, फसलें तबाह हो चुकी हैं। ताहाल कोई सर्वे नहीं किया गया। मुतासर किसानों का हुकूमत से फौरी सर्वे करवाने और इमदाद की अपील। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अतीक से। बस्ती जुया के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ अगर बात की जाए दरिया सतलुज में दोबारा पानी में इजाफे की, तो दरिया सतलुज में दोबारा पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला है। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसी तौर क्या क्या नुकसान थे? सर असें 10 एकड़ फसल तबाह थी गई है। अगू भला कणक भी नहीं बह सकती, घर वो भी जरे ढाए गए बकाया। हाली तक कोई हुकूमत का बंदा सारे कने कोई कह नहीं आया इतना लिखण करने वास्ते। असां बिल्कुल परेशान है। कोई बंदा हाली तक सारे को नहीं आंदा पे, ना कोई सारे घर लिखण आंदा पे, ना कोई सारे फसलां लिखण आंदा पे। अगू जो कणक वावनी वो कणक भी नहीं बह सकती, दोबारा सैलाब आ गए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दोबारा पानी आने की वजह से जो गंदम की काश्त थी वो भी हम नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए सर्वे टीमों की, तो यहाँ अभी तक कोई सर्वे करने टीम नहीं पहुंची। लिहाजा हुकूमत वक्त से किसानों की यही अपील की जा रही है कि जी शुक्रिया मलिक अतीक। अभी आपको बताएं बहावलपुर के शहर के इलाका बंदरा कॉलोनी का फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 साल से बंद है। खराब फिल्ट्रेशन प्लांट डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ और MNA मलिक इकबाल के घर के पास है। शहरी कहते हैं बारहा दरख्वास्तें दी, हजारों लोग साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं। मज़ीद जानेंगे महमूद सहीर से। जी अपडेट कीजिएगा। हुकूमतों का बुनियादी काम होता है कि शहरियों के बुनियादी हकूक पूरे किए जाएं और उसमें साफ पीने का पानी तो सबसे बड़ा बुनियादी हकूक है। क्या कहेंगे सर, फिल्ट्रेशन प्लांट कब से उजड़ा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। बिंद्रा पुली भावलपुर जो है ना, ये पानी के साफ पानी के पीने से जो है ना महरूम है। लोग यहाँ आते हैं और जो है ना पानी के बगैर चले जाते हैं। तो 1.5 साल हुआ है, पानी की किल्लत है यहाँ पे।
और ये जो है नशाइयों ने यहाँ से मोटर जल गई थी, वो उखाड़ के ले गए हैं, टूटियाँ भी ले गए हैं। तो अब ये पानी के बगैर है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा अफराद हैं यहाँ पे, घर हैं जो यहाँ गुजारा कर रहे हैं और बगैर पीने का साफ पानी तो मिलना चाहिए। सर बिल्कुल बुनियादी हक है, हमें पीने का पानी मिलना चाहिए सर। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। उजड़ा हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 साल से, जिसके उजड़े हुए एक यादगार बनी हुई है। यहाँ पर टूटियाँ नहीं हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं। जी महमूद साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लिया में दुकानें सील करने के खिलाफ अंजुमन ताजरान का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। जर्नल बस स्टैंड पर सदर अंजुमन ताजरान हाजी असर खान हंस की क़यादत में ताजर धरने में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा। जी बोलिए, लिया में जनरल बस स्टैंड पर दुकानें सील करने के खिलाफ आज जो अंजुमन ताजरान का एहतजाजी धरना जो है 5वें रोज भी जारी है। सियासी और समाजी शख्सियात जो वो भी इस धरने के अंदर शरीक हैं और धरना आज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। क्या होने जा रहा है सर, मुज़ाकरात की वजह से क्या बताएंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, जैसा कि कल आपको बताया है ज़ैद भाई कि हमारे आज दौर शुरू होना है मुज़ाकरात का। फारवी साहब भी आ गए हैं, मुजफ्फर भाई भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हम इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं डीसी ऑफिस और अल्लाह के हुक्म से उम्मीद काफ़ी है कि आज हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के बाख्तियार अफसरान के तरफ देख रहे हैं कि ये बड़ा हसास किस्म का रोजी रोटी का मसला है, इसको फिलफौर हल किया जाए, इसको देर ना लगाए। जी बिल्कुल, मुतालबा किया जा रहा है कि दुकानें फौरन डीसील करते हुए जो ताजर रहनुमा है उनके जो मुश्किलात उनको पेश आ रही उस वाले से डिप्टी कमिश्नर लिया मीरा बैदार अपना जो रोल है प्ले कर। जी शुक्रिया जाहिद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ का दौरा मंसूख, डिप्टी कमिश्नर की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की आमद के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में आज इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करना था। बसों के इफ्तिताह के हवाले से तकरीब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पंडाल तैयार किया गया था। जी आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ का दौरा मनसूख कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की आमद के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में आज इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करने आना था। बसों के इफ्तिताह के हवाले से तकरीब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पंडाल तैयार किया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के हवाले से आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ का दौरा मनसूख कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक भी कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की आमद के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में आज इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करने आना था। तजावज़ात हटाने जाने वाली मुल्तान कॉरपोरेशन की रेगुलेशन टीम पर शहरियों ने तशद्दुद किया। मौका पर मौजूद अफराद ने धक्के दिए और कपड़े फाड़े। एहलकारों का इल्जाम है, कहा इलाके में मौजूद खातीन ने भी बोतलें और ईंटें फेंककर जख्मी किया। थाना डेलीगेट पुलिस ने मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। तजावज़ात हटाने जाने वाली मुल्तान कॉरपोरेशन की रेगुलेशन टीम पर शहरियों का तशद्दुद। मौका पर मौजूद अफराद ने धक्के दिए और कपड़े फाड़े। एहलकारों का इल्जाम, कहा इलाके में मौजूद खवातीन ने भी बोतलें और ईंटें फेंककर जख्मी किया। तजावज़ात हटाने जाने वाली मुल्तान कॉरपोरेशन की रेगुलेशन टीम पर शहरियों ने तशद्दुद किया। मौका पर मौजूद अफराद ने धक्के दिए और कपड़े फाड़े। एहलकारों का इल्जाम है, कहा इलाके में मौजूद खातीन ने भी बोतलें और ईंटें फेंककर जख्मी किया। थाना डेलीगेट पुलिस ने मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। तजावज़ात हटाने जाने वाली मुल्तान कॉरपोरेशन की रेगुलेशन टीम पर शहरियों का तशद्दुद। मौका पर मौजूद अफराद ने धक्के दिए और कपड़े फाड़े। एहलकारों का इल्जाम, कहा इलाके में मौजूद खवातीन ने भी बोतलें और ईंटें फेंककर जख्मी किया। मुल्तान में इंतजामिया की जानिब से गुंजानाबाद सड़कों पर ईंटों से बनाए गए स्पीड ब्रेकर शहरियों के लिए अजाब बन गए। शहरी सरापा एहतजाज कहते हैं, गैर मेयारी स्पीड ब्रेकर से गाड़ियों के सस्पेंशन, टायर और निचले हिस्से को नुकसान पहुंच रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल बात करेंगे। मुल्तान शहर में एक बड़ा मसला जो शहरियों को दरपेश हो रहा है, बनाए गए जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो गैर मेयारी हैं और उससे गाड़ियों के जहाँ पे शाख्स टूट रहे हैं वहाँ हादसात भी बढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ उल्ट जाती हैं, उसके साथ ही उल्टने के साथ ही मोटरसाइकिल सवार गिर जाते हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुँच रहा है। मेरा कैमरामैन इरफान असलम दिखाया तो ये गैर मेयारी जो पूरे 14 नंबर रोड पर जो 3 से 4 इस तरह के जो बनाए गए हैं स्पीड ब्रेकर, ईंटों से बनाए गए हैं और अभी से वो टूट फूट का शिकार हैं।
लोड गाड़ियां जो है वो यहाँ पे जो है उनका हादसात पेश होते हैं। इसके साथ साथ मुल्तान कैंट की बात करें तो और इसके साथ दीगर शहर के दीगर मेन रोड पर जो है इस तरह के गैर मेयारी स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। शहरी भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ के मकीन हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ उल्टती हैं रोज़ाना यहाँ उल्ट जाती हैं, रिक्शे उल्ट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है लोगों का। ये जंप सही नहीं बनाया, मेहरबानी है इसे सही किया। आप बताएं कि कितना मसला जो है वो बिल्कुल ये डेली गलती होते हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल सवार रश के, लोडर रश के गलती हो जाते हैं यहाँ पर। हर बंदा आने जाने वाला तंग होता है इधर। ये मुरम्मत होनी चाहिए इसकी, जिस तरह सब्ज मंडी के पास बना हुआ है, लुक वुक बिछाई हुई है, वो बेहतर बना हुआ वाला होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, देख रहे हैं कितना मसला है? भैया ने इसमें मसला बहुत ख़राब है, आने जाने वाले तंग होते हैं, रोजाना के 3-4 रेड़े कल्टी हो जाते हैं। बड़ा गंदा जंप बनाया हुआ है, जंप यानी कि सही नहीं बनाया, आप भी देख रहे हैं। शहरी ये कहते हैं कि हर मुल्क में कवानीन होते हैं, ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, उन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये बनाए जाते हैं स्पीड ब्रेकर। लेकिन मुल्तान में हम अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की ये एक जो है गफलत भी है कि बनाने वालों ने मेन रोड पे इस तरह के स्पीड ब्रेकर बनाए। जामपुर का शेरो रोड 2010 के सैलाब में तबाह हो गया था। 15 साल गुजरने के बावजूद शेरो अड्डा शर्की बाईपास रोड न बनने से शाहजमाल कॉलोनी, शहबाज कॉलोनी समेत शेरों तक सफर करने वाले मुसाफिर असियत का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। अगर जामपुर के शेरू रोड के हवाले से बात करें तो शेरू रोड 2010 के सैलाब के बाद जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसके बहस जो है शहबाज कॉलोनी, शाहजमाल कॉलोनी से लेकर शर्की बाईपास तक जो है सफर करना एक मुश्किल तरीन जो है एक मरला है। बारिश के अयाम में यहाँ पर जो काफी दिनों तक जो है पानी जमा रहता है, जहाँ पे लोग जो है एक अजियतनाक सफर करने पर मजबूर है। इस पर बात कर लेते हैं, शहरी भी मौजूद है। क्या मुतालबा है आपका, क्या कहेंगे आप? हजूर हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, ये रोड टूट का शिकार है, इसको मरम्मत किया जाए। 2010 से लेकर आज तक अभी तक जो है ना हमें रोड की जो है ना कोई सहूलियत मुयसर नहीं हुई। जिसे भी कहते हैं वो जो है ना कहता है बस ये काम आपका हो जाएगा। इस वक्त जो है ना 3 सियासतदान आ चुके हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, अभी तक जो है ना उनका कोई यहाँ पे कोई रद्द अमल नहीं हुआ। उनका यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके इस रोड को जो है नए सिरे से बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो है। जी शुक्रिया जावेद इकबाल अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं रोही की खबर पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। मुल्तान ईदगाह रोड का तरक्याती काम दोबारा से शुरू कर दिया गया। तरक्याती काम शुरू होने पर इलाका मकीन खुश हैं। रोही से इजहार तशक्कुर किया, काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की अपील की है। तफसीलात जानेंगे सलमान समीर से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रोही पर खबर चली और इंतजामिया एक्शन में आ गई और ईदगाह रोड का एक दरीना मसला जो है वो अब हल होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है ईदगाह रोड पर और यहाँ पर अर्थात 6 माह के करीब तरक्याती काम जो किया जाना था वो रुका और जब रोही पर खबर चली तो उसके बाद इंतजामिया को होश आया और यहाँ पर अब तरक्याती काम जो है उसका आगाज़ दोबारा से कर दिया गया। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। सर क्या कहेंगे कि रोही पर खबर चली और उसके बाद काम शुरू हो गया? रोड पहले बिल्कुल ही नहीं बन रहा था ना, अब इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम रोहित वालों का। अब रोड बन रहा है, बस जल्दी बन जाए, ये हमारा मतलब कि कहना चाहते हैं। रोड जो है वो जल्दी बन जाए। एक और दोस्त मौजूद है, क्या कहेंगे दोस्त के खबर चली और उसके बाद एक्शन हुआ? यार रोड बन जाएगा तो मेरा कारोबार चलेगा। रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ यार, रोड जल्दी बन जाए तो काम जो है वो चलेगा। तो मजीद जो जी आपको दिखाते हैं कि ये रोड जो था इसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसकी वजह से जो लोग थे वो परेशान थे। तो मजीद आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि पत्थर जो निकले हुए थे उन्होंने आवाम के लिए सर में दर्द किया हुआ था और सर में दर्द करने की वजह से लोग जो हैं वो परेशान थे। तो मजीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? पहले तो रोही टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने परसों न्यूज़ चलाई है तो रोड आज ये बजरी डाल दी इन्होंने। तो अब यही कहना चाहेंगे भाई ये बजरी डालते चले ना जाएं, रोड मुकम्मल करें और पूरा रोड बनाएं। हाँ जी, रोड जो है वो दरमियान में ना रोकें। और जी सलमान समेत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने पर मियां वाली के अवाम खुश।
लेकिन तहसील ईसा खेल के बासी सहूलत से यकसर महरूम। शहरियों का वज़ीर-ए-आला पंजाब से ईसा खेल में भी इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत दिए जाने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुकर्रब खान से। मुकर्रब बताएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने मियाँ वाली को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा दिया, जिसकी वजह से मियाँ वाली शहर और गिरदोनवा की जो आबादी है वो मुस्तफीद हो रही है, लेकिन तहसील ईसा खेल के शहरी इस सहूलत से महरूम है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे हमरा एक शहरी मौजूद। जी, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने ज़िला मियाँ वाली को इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं और वो लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ईसा खेल जो कि इस सर्विस से महरूम है और ये हमारी वक्त की ज़रूरत भी है और ये वैसे भी इन जो वज़ीर आला का विजन है उसके मुताबिक हमें भी ईसा खेल में ये बसेस फराहम की जाएं ताकि हम लोग भी अहले ईसा खेल भी इससे मुस्तफीद हों। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से। जी शुक्रिया मुकर्रब खान। अभी आपको बताएं, चिश्तिया शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया बाईपास मिनी ट्रक अड्डे में तब्दील कर दिया गया। शहर के मेन शाहराह पर मिनी ट्रक अड्डा कायम कर दिया गया है। सड़क किनारे पर खड़ी गाड़ियों की वजह से रोड ब्लॉक होने पर हादसात मामूल बन गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद हुसैन हाशमी, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानब तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर पंजाब भर के अंदर इंक्रोचमेंट के सिलसिले में तजावजात को ख़त्म किया जा रहा है ताकि तमाम शहर जो हैं वो खूबसूरत नजर आए। तो दूसरी जानब चिश्तिया के अंदर बल्दिया इंतज़ामिया की मिली भगत के साथ चिश्तिया के मेन शाहराह पर बनाए गए शहर की खूबसूरती के लिए बाईपास को मिनी ट्रक अड्डे में तब्दील कर दिया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मैं इस वक्त चिश्तिया के मेन शाहराह पर बस जो बाईपास है वहाँ पर मौजूद हूँ। बिल्कुल शहर के अंदर आवाम को सहूलत देने के लिए ये बाईपास बनाया गया, लेकिन इसके पीछे ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बल्दिया की साथ साथ है, लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी बसें मिनी ट्रक अड्डे यहाँ पर बनाने की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा जो है वो मामूल बन चुके हैं। मुतलका जहाँ के जो शहरी हैं लोग हैं उनका डीसी बहावल नगर, कमिश्नर बहावलपुर से और वज़ीर आला पंजाब से बिलखुसूस मुतालबा है कि अगर इस बाईपास को शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया है तो इनकी दोनों तरफ से ट्रैफिक की जो रवानगी है उसको मुतासर बनाया जो हो रही है उसको बहाल किया जाए। उसकी गोदा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से ई चालान के इजरा के बाद शहरियों में हेलमेट पहनने का रुझान बढ़ गया है। जुर्मानों से बचने के लिए शहरियों ने हेलमेट की खरीद के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट खरीदने में मसरूफ है। मज़ीद बता रहे हैं शेख उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट ई चालान वसूल होने के बाद शहरियों ने भी अभी रुख किया हुआ है। शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो हेलमेट है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त देखने में आ रहा है कि मेन रोडों के ऊपर और मेन बाजारों के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है हेलमेट जो है वो फरोख्त करने के स्टॉल लग चुके हुए हैं। इसी तरह हम एक स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पर हेलमेट फरोख्त कर रहे हैं। सर बताइएगा कि कितनी डिमांड बढ़ गई है? जी, ये जब से ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है उससे पहले तो लोगों ने इसको ईजी लिया, लेकिन बाद में जब सख्ती आई है और लोगों को चालान आना, एक एक बंदे के 8-8 से 10-10 चालान आ रहे हैं। उसमें जो वायलेशन होती है ज़्यादातर हेलमेट की होती है या फ़ोन वगैरह की ट्रैवलिंग के दौरान। तो इस हवाला से लोग अब ज़्यादा हेलमेट ख़रीद रहे हैं, कुछ रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यह है कि नए हेलमेट ख़रीद रहे हैं। क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से लोगों के लिए एक मुनासिब सी कीमतें भी हैं। तकरीबन 1000 से लेके 2500-3000 तक इजीली हेलमेट मिल जाता है और चालान से बच जाता है। जैसा कि आपने जाना कि इनका भी यही कहना है कि डिमांड जो है वो बढ़ चुकी हुई है। ई चालान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हेलमेट की कीमत जो है उसके अंदर भी जो है वो देखने में बढ़ते नजर आ रही है। लेकिन जब हमारी स्टॉल मालकान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये इस वक्त मुल्तान शहर को क्राइम से महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी के कैमरे मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए। एसपी सेफ सिटी नसरुल्लाह बढ़ाई कहते हैं कि एक माह में 18,000 से ज्यादा लोगों के खवानीन के खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हसन मलिक ने ज्वाइन किया। हसन बताइएगा।
جی سیف سٹی ملتان کی جانب سے کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں اور اب ملتان کے شہری جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ سے بھی نہیں بچ سکیں گے، اور اگر کوئی دھوکہ دہی، فراڈ یا قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ ان کا تو چلان ویسے ہی کیا جا رہا ہے۔ اب تک سیف سٹی نے کتنے چلانز ڈیلیور کر دیے ہیں اور کس کس چیز پر چلان کیا جا رہا ہے، اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس پی سیف سٹی ملتان نصر اللہ وڑائچ صاحب موجود ہیں۔ جب ٹریفک کے رولز اور قوانین کی لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس سے حادثات بڑھ جاتے ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ای چلان کا بھی آغاز کیا گیا ہے تاکہ شہری جو ہیں وہ حادثات سے بچ سکیں، اور حادثات سے روک تھام کے لیے یہ تمام شہریوں کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے۔ اس پہ اس وقت جو ہے ای چلان ہمارا ڈیلی بیس پر چلان کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ میں مینی ٹائم یہ پہلے بھی لوگوں کو اویئرنیس کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جب بھی وہ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ کو ضرور استعمال کریں، موٹر سائیکل اگر وہ چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ ضرور وہ پہنیں، اور اسی طرح دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال اس سے پرہیز کریں، اور اگر وہ ہمارے کیمرے کی آنکھ میں اس وائلیشن ان کی آئے گی اگر تو یقیناً ان کے خلاف جو چلان کیا جائے گا۔ ڈیلی بیس پر تقریباً 2000 ہمارا چلان ایوریج جو اس وقت پر ڈے کے حساب سے، اور اس وقت تک ہم تقریباً 18,000 چلان اس وقت تک ہو چکا ہے تقریباً ایک ماہ میں۔ لوگوں کے چلان کیے جا چکے ہیں جو کہ وائلیشن تھی، ان پر تقریباً 18,000 سے زائد چلان کیے جا چکے ہیں۔ جی شکریہ حسن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھاولپور میں 4 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 8.5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عامر بشیر ملک مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ سی ای او کہتے ہیں فیلڈ افیکٹڈ ایریاز میں مہم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مزید جان لیں گے طاہر جوتیہانہ سے۔ جی بھاولپور میں بھی آج 4 روزہ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹیمیں جو ہیں اب وہ فیلڈ میں ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ موجود ہیں جو کہ خود بھی اس وقت فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں اور ساری جو پولیو کیمپین ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے بچوں کو پولیو قطرے پلائے جا رہے ہیں اور آپ اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے پنجاب میں ایک 4 روزہ پولیو مہم کا جو ہے کہ آج پہلا دن ہے، تو اس سلسلے میں بھاولپور کی میں اپنی تمام جو MMP ہے اس کو چیک کرنے کے لیے خود نکلا ہوا ہوں۔ سیکٹری اور منسٹر صاحب کا بھی حکم ہے کہ ہم لوگوں نے فیلڈ میں رہنا ہے، تو ہم نے 8.5 لاکھ کے قریب بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلانے، اور اس کیمپین میں وائٹامن اے کے ہم ڈراپس بھی دیں گے۔ بالخصوص ہمارا فوکس جو ہوگا وہ فلڈ افیکٹڈ یوسیز کے اندر ہوگا۔ بہت زیادہ پاپولیشن کی موومنٹ ہوئی ہے، اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، اور 4 دن کا ہماری جو یہ کیمپین ہے تو انشاءاللہ ویل میک شور کہ ہم 100% ہمارے ٹارگٹ جو ہیں اس کو اچیو کریں، اور بھاولپور کی حد تک ہر وہ بچہ جس کو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی موذی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کو وقت سے پہلے ہم پولیو کی جو ڈراپنگ ہے وہ کر دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، فلڈ افیکٹڈ ایریا بھی ہے، وہاں پر جانا بھی مشکل ہوگا، تو وہاں کوئی اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں یا وہی جو آلریڈی پہلے کرتی ہیں کور وہی کر رہی ہیں؟ ہم نے اپنا اسپیشل میکانزم بھی ڈیولپ کیا ہے، اور وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کی مدد سے ہم نے اپنے ہاٹ سپاٹس بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور جو بچے ہیں ہم نے ان کو ٹیلی فونیکلی ان کے پیرنٹس کو کمیونیکیٹ بھی کیا ہوا ہے، تو ہم وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم 100% ان کی ویکسینیشن مقررہ وقت کے اندر مکمل کر لیں گے۔ میری تمام بھاولپور کے والدین سے یہ درخواست ہے کہ محکمہ صحت 24 گھنٹے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ پولیو کی جو 4 روزہ مہم ہے اس میں تمام والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے پولیو کے حفاظتی قطرے لازمی پلوائیں۔ بالکل جی، اور ٹیمیں متحرک ہیں، سی او ہیلتھ جو ہیں وہ خود فیلڈ میں موجود ہیں، اور تمام جو کیمپین ہے اس کو اوورسی کیا جا رہا ہے، اور پیغام یہی ہے کہ جی طاہر جوتیہانہ بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں قومی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے تحت جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلع ملتان میں 10,23,093 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے گوہر رحمان شیخ سے۔ گوہر رحمان شیخ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کے تحت جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خانیوال میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم میں پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ مزید جانے کہ محمد ندی مغل سے۔ جی
5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पोलियो टीम में घर घर जाकर 5 साल के बच्चों को कतरे पिला रही हैं और यह आज मौजूद हूँ यूसी 6 में, जहां पर पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाते दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ सुपरवाइजर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका टारगेट क्या है। जी, मेरी यूसी का टारगेट जो है वो 5200 है और मेरी टीम जो है सुबह 8 बजे से पहले जो है फील्ड में मूव कर गई थी। इस वक्त मेरी 18 टीम्स जो है वो फील्ड में वर्क कर रही हैं। तो मेरी जो यूसी का टारगेट, जिससे मैंने बताया कि 5200 है, इंशाल्लाह हम लोग जो है 3 दिन हमारा पोलियो के डेज हैं और 1 दिन का कैचअप है। हम ये 4 दिन में अपना जो टारगेट है वो मैक्सिमम कवर करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम 100% कवर कर सकें। बस एक पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, मेरी टीम डोर टू डोर जा रही है। सुबह से गर्मी का मौसम है, काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करती रहती हैं। पेरेंट्स जो है वो जल्दी दरवाज़ा नहीं ओपन कर रहे। तो मुझे सिर्फ अपने कम्युनिटी के जो वालिदैन हैं और जो लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो दरवाज़ा खोलें और अपनी टीम को जो है, जो हमारी टीम आ रही है उन्हें वेलकम करें और अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिला लें। तो इसलिए तमाम वालिदैन से और अस्ताज़ा कराम से भी रिक्वेस्ट है, स्कूल्स में जब टीम्स आएँ तो वो भी मैक्सिमम जो है वो बच्चे हमारे जो है वो कवर करवाने में मदद करें। जी बिल्कुल, सुपरवाइजर का यही कहना है कि जब टारगेट पूरा करने का मकसद भी ये है कि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। इसमें पोलियो टीमों का साथ दें और अपने 5 साल के बच्चे की उम्र तक के जी मोहम्मद नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में भी 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 16 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम में जिला भर के 5 साल तक की उम्र के 3,58,000 टारगेटेड बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना आसिफ हनीफ से। राना आसिफ बताएगा। जी बिल्कुल, जिला लोधरा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। 13 से 16 अक्टूबर यानी 4 रोज तक ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 3,85,000 जिला भर के ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 साल तक की हैं और उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील लोधरा के 1,69,000, तहसील टोड़पका के 1,11,000 और तहसील दुनियापुर के 1,04,027 बच्चे हैं जिन्हें ये पोलियो कतरे पिलाए जाने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ लोधरा डॉक्टर आसिफ अली राना। सर, मुहिम शुरू हो चुकी है, क्या टारगेट रखा है, क्या कुछ करेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क भर में जैसे कि है NID अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है, ऐसे ही ज़िला लोधरा के अंदर भी आज से 13 से 16 तक ये कैंपेन हमारी जारी रहेगी, जिसमें पैदाइश से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो की ड्रॉपिंग होगी और साथ में उनको विटामिन के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। हमारा जो है ज़िले का टारगेट है वो 3,50,000 बच्चे हैं। तो इन्हें जो हमारी टीम्स गली गली घरों में जाकर, स्कूल्स में जाकर, ट्रांजिट पॉइंट पे इन्हें फिक्स जो हमारे स्टेशन हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाके हम इन्हें जो है ना कतरे पिलाए जाएंगे। इसमें मेरी वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि हमारे जो टीम्स के साथ कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को जो है, जो भी घर में मेहमान आए हुए हैं उन्हें पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाएं। थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ ये भी बताइएगा कि जो अक्सर वालिदैन इस बात पे बड़े कंफ्यूज हैं कि जो बच्चा पैदा हो जाता है, फौरी पैदा होने के 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद भी पोलियो कतरे उसे पिलाना नुकसानदेह तो नहीं होगा सर? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये हमारी एक EPI है, उसका एक शेड्यूल भी है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसे पैदा होते ही उसे पोलियो ड्रॉप पिलाए जाएं। ये हमारी जो है EPI शेड्यूल का भी एक हिस्सा है और इस तरह अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई ऐसा कोई नुकसान है नहीं। जी बिल्कुल, डॉक्टर आसिफ अली राना डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ये कहना है कि पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। लोधरा 2011 से पोलियो फ्री है। इस कोशिश में जिले इंतजामिया महकमा सेहत का साथ दे ताकि जिला लोधरा पोलियो फ्री रह सके। जी शुक्रिया राना आसिफ अपडेट करने। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। फर्स्ट ईयर के पोजीशन होल्डर्स का नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में कुल 74,329 तलबा ने शिरकत की। मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बताइएगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से फ़र्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात 2025 का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और शेड्यूल के मुताबिक 15 अक्टूबर को फ़र्स्ट ईयर पहले सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल 76,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फ़र्स्ट ईयर के इम्तिहान के लिए अपना दाखिला जमा करवाया था, जबकि इम्तिहानात में जो स्टूडेंट शरीक हुए थे उनकी तादाद जो है वो 74,300 है। इसी तरह से अगर हम मेल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी तादाद 33,500, जबकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 42,460 है। जो प्राइवेट उम्मीदवारान हैं वो अपने नताइज मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं और अपना नतीजा जो है वो
معلوم کر سکتے ہیں بذریعہ SMS، جبکہ جو ریگولر امیدواران ہیں ان کے ادارہ جات رزلٹ والے دن ہی جو نتائج ہیں وہ بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کریں گے اور 15 اکتوبر تک چیئرمین PCB کا ویژن حقیقت میں تبدیل، رحیم یار خان میں کرکٹ کا نیا دور شروع، محسن نقوی کے ویژن کے تحت عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس رحیم یار خان میں 2 نئے پیچز کی تیاری کا آغاز، اعلیٰ کوالٹی کی مٹی عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عامر بھٹی نے جوائن کیا۔ عامر بتائیے گا۔ بالکل، رحیم یار خان میں PCB چیئرمین سید محسن رضا نقوی کے خصوصی VN کے تحت عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس میں مزید 2 نئی انٹرنیشنل لیول کی پچز کی تیاری کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی جو مٹی ہوتی ہے وہ اسپیشلی عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس میں پہنچا دی گئی ہے، اور یہاں پہ 2 نئی پچز کی تعمیر کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ PCB کے ایگزیکٹو ممبر ہیں طارق سرور، جو کہ ان تمام تر کاموں کے جائزہ بھی لے رہے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے۔ یہ بتائے گا 2 نئی پچز کے بعد عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس کے جو گراؤنڈ ہے وہ کس لیول میں شامل ہو جائے گا، اور یہاں پہ کون کون سے لیول کے ہم جو میچز ہوں گے یا ٹورنامنٹس ہوں گے ان کی میزبانی کر سکتے ہیں۔ میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب کا اور ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی صاحب کا، جنہوں نے بہت سالوں کے بعد یہ انیشیٹو لیا ہے کہ گراس روٹ لیول پر گراؤنڈز کی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر 4 ڈے کرکٹ ہو رہی تھی، حنیف محمد کے میچز بھی ہوئے، تو امپائرز، ریفریز اور سب نے کی ایک ہی تجویز تھی کہ ہمارے پاس 3 ٹرف پچز ہیں تو ان کو 5 کیا جائے۔ تو الحمدللہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو مٹی فراہم کی گئی، تو اس مٹی کی مدد سے ہم نے الحمدللہ 2 پچز جو ہیں وہ یہاں پر ان کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے، جو آنے والے 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہمارا یہ سینٹر جو اب فرسٹ کلاس سینٹرز میں جس کو شامل کیا گیا ہے، تو پچز بننے سے یہ ہوگا کہ جو بھی فرسٹ کلاس سٹینڈرڈ کی ٹیمز آئیں گی اور گراس روٹ لیول کی ٹیمز ہوں گی، ان کو اس گراؤنڈ میں میچ سے پہلے پریکٹس کرنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کو ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب اور ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی صاحب اور سینئر جنرل مینیجر جو یہاں پر تشریف لائے تھے جنید ضیاء صاحب، یہ ان کی خصوصی ریکمنڈیشن تھی کہ یہاں پر پچز 5 ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا۔